Hello friends, today we will see the gas sensor we are using. Like we have different types of gas sensor. You can see that on a Google. MQ series is there. MQ2, MQ4, MQ3, MQ6 are the different gas sensor we can use, and they are specifically designed for specific gases. So this is MQ6 gas sensor you can see over here, and this is used for LPG, specifically LPG gas detection. Okay, so this is the circuit. We have pot over here, we have one IC which is comparator IC, and some number of resistors and some connections, and we get output here. Okay, you can see A0 here, and that is analog output, that is digital output, this is ground and VCC. Okay, so if you want to buy this, it is available as it is online, but if you want to see like how it is work, from where A0 is taken, from where D0 is taken, what this IC is all about, so we will design this PCB. Why this pot is used, we can go and see. Okay, so let's start designing a schematic first, and then we will go with the PCB designing. Here we are using Easy EDA, which is completely free of cost, available on a Google, and here we started with the schematic. Here what we want is a gas sensor, so we in a devices we go to sensor, and there we can see gas sensor option. You just need to wait and scroll down, you will see a gas sensor, and that is like have a 6 pins, so we can use like that. So you can see like AA, BB and HH. So H is nothing but the heater, and you can shuffle between A and B. So both, if you connect A to VCC, then you will get output at a 1 of B, right? So now next what we are going to use here is the IC, and that is LM5358, that is comparator IC, which is commonly used. It is 8 pin IC having 2 comparators inside. Now the point is, what is comparator? Comparator is nothing but op-amp we are using and giving reference voltage to non-inverting terminal, and at a non-inverting terminal we are giving D0, right? So here you can go to there and check the data sheet of it. Okay, so we are placing here, like in a schematic you will not get IC as a symbol, you are getting IC as op-amp itself. So you have component list over here which is shortcut, but there you are actually not getting what exactly you want to get. तो आप directly डिवाइसेस में जाके चाहिए वो रजिस्टर को पिक कर सकते हो. सो हियर इन अ रजिस्टर, चीप रजिस्टर्स आई एम यूजिंग, एंड आई एम using package specifically 0805. It is SMD and the value I need is 10K. So I'm just putting that value, apply the filter, and आपको आ जाएगा, आपको सिर्फ उसको जाके प्लेस करना है. नाउ यू आर गेटिंग द कंपोनेंट, बस स्पेस दबा के उसको जो है आप रोटेट कर सकते हो. आई एम जस्ट प्लेसिंग इट. अभी मुझे वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करना है. वोल्टेज डिवाइडर हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हमारा वोल्टेज जो है डिवाइड होके कंपैरेटर को एक रेफरेंस इनपुट जाएगा. सो उसके बेसिस पे हम जाके उसको वैल्यूज़ को, इंटेंसिटी को, मतलब जिस सेंसिटिविटी से हमें MQ6 का डिटेक्शन चाहिए, गैस डिटेक्शन, वी कैन सेट दैट वैल्यू. अभी हमें अदर एंड में हाँ फिक्स वैल्यू का रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रही हूँ. अगेन रजिस्टर्स में जाके पोटेंशियोमीटर ऑप्शन है. आई एम जस्ट गोइंग देयर एंड सी विच रजिस्टर आई वांट टू यूज़. सो आई हैव नंबर ऑफ रजिस्टर पोटेंशियोमीटर्स ओवर हियर. उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है. एनी वन यू वांट, जस्ट प्लेस करना है आपको. वहाँ पे यू विल गेट ऑप्शन प्लेस. So I just picked the wrong potentiometer. I'm just going back and selecting the required potentiometer, this one. Okay, so I'm placing it. You can see वहाँ पे value जो है that is 50 kilo ohm. Okay, so I don't want 50 because मैंने दूसरा जो register use किया that is of 10 kilo. तो I'm changing that value to 10K. और
जो आपको कनेक्ट करना है बाय वायर, तो यू कैन जस्ट प्लेस इट ऑन अदर एंड और उसको जस्ट स्ट्रेच कर लो, यू विल गेट द वायर कनेक्शन। अभी मैं ऊपर से ग्राउंड ऑप्शन है वहाँ से ग्राउंड का वायर्स लेके आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन अ रिक्वायर्ड पॉइंट। तो वीसीसी मैंने यहाँ पे दे दिया, आईसी को दे दिया। अगेन एट MQ6 सेंसर यू कैन सी MQ6 सेंसर का जो हेडर पिन है उसके एक एंड को मैं VCC देने वाली हूँ, अदर एंड को आई एम गिविंग नथिंग बट द ग्राउंड। A0 एंड A1 आई एम शॉर्टिंग इट टू VCC। और अगर आपने B को शॉर्ट किया है तो यू हैव टू गेट द आउटपुट फ्रॉम A। ठीक है, राइट नाउ आई एम गिविंग B0 टू VCC और B1 को मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट कर दूंगी एंड दैट एट दैट पॉइंट आई एम गेटिंग A0। ओके, MQ6 सेंसर जो है उसको इसी तरह से कनेक्ट किया जाता है। सो वे आई एम गेटिंग D0 आई एम गेटिंग एट द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। So this is exact circuit where I'm getting the output and this is only what we require। तो अब इस सर्किट को अगर आप कहीं मतलब जैसे कि हमने 4 पिन्स देखा था, सो वी आर अगेन कनेक्टिंग हियर 4 पिन का कनेक्टर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको 4 पिन का कनेक्टर मिल जाएगा, बट थिंग इज़ कि यहाँ पे आप उसका जो मतलब एग्जैक्टली प्रीव्यू नहीं देख पाते। सो फॉर दैट रीज़न ओनली मैं जनरली डिवाइसेस पे जाके ही लेती हूँ, सो इट विल ईजी फॉर मी। अब मैंने यहाँ पे जो प्लेस कर दिया है 4 पिन का, तो आई एम जस्ट अगेन चेकिंग कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ कनेक्टर वी रिक्वायर। तो यहाँ पे हमें इमेज के साथ डिवाइस दिख जाता है। सो हियर वी आर गेटिंग फीमेल कनेक्टर्स, नंबर ऑफ ऑप्शंस वी हैव। आपको जो पिच का चाहिए, यू वांट व्हाट पैकेज, व्हाट नंबर ऑफ पिन्स, यू कैन जस्ट गेट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको 2.54 का पिच साइज मिल जाएगा। यू विल गेट अनदर पिच साइज, यू विल गेट रेक्टेंगुलर पिन। सो ईजी EDA जो एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ एक्चुअली यूजफुल। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो जस्ट कमेंट, तो वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, PCB डिज़ाइनिंग स्कीमेटिक मेकिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। राइट नाउ यहाँ पे जिस तरह से मैंने उसको प्लेस कर दिया है, तो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग कि मैं इसको प्रॉपरली पहले ऐसे प्लेस करूँगी कि मैं उसका प्रॉपर वायर कनेक्शन कर सकती हूँ। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक कि 1 को मैं VCC दे दूँ, 2 को मैं ग्राउंड कर दूँ, बट हियर इट मेक्स मेसी। तो बाय यूजिंग X you can vertically you can horizontally switch the side, you can use vertical switching। तो आपको Y यूज़ करना है, आपको अगर रोटेट करना है सिर्फ तो यू कैन जस्ट यूज़ अ स्पेस। ठीक है, तो राइट नाउ मैंने 2 नंबर पिन को ग्राउंड दे दिया है। हमारा जो है 1 नंबर मैंने नीचे से स्टार्ट कर लिया है और जो रिमेनिंग अननेसेसरी वायर्स है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ सिंपली। ठीक है, तो यू कैन जस्ट जूम बाय माउस, तो ये बहुत इजीली वर्क कर देता है। राइट नाउ आई नीड VCC, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से VCC लेके स्पेस बार से मैं उसका डायरेक्शन चेंज करके इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँगी एंड आई एम गेटिंग द कनेक्शन। राइट नाउ आई एम टेकिंग D0, तो मैं डायरेक्टली कंपैरेटर से ले लूँगी एट अ पिन 3। और if you want to take A0 then you have to connect number 2 of comparator। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ लाइक इफ़ यू वांट टू टेक, यहाँ पे मैंने रेफरेंस इनपुट यहाँ पे कंसिडर किया है एंड आई एम जस्ट गिविंग द नेम्स। तो अभी मैंने क्या किया, जो इनर साइड में मुझे दिख रहे थे नंबर्स उसको मैं रिमूव कर दूंगी और यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना है। सो VCC आई एम टेकिंग और यहाँ पे जस्ट मैं पेस्ट कर रही हूँ, आई एम जस्ट प्लेसिंग इट आउट। उसका जो अभी नाम नंबर है आई एम चेंजिंग इट। सो D0 दिस इज़ द रेफरेंस इनपुट बट राइट नाउ आई एम मेंशनिंग इट एट A0 और ये ग्राउंड रहेगा एंड द VCC। अब इफ़ यू वांट यू कैन चेंज इट्स साइज़। यहाँ पे यू विल गेट द ऑप्शन कि आपको साइज चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आपको मिल ऑप्शन में दिखता है तो यू कैन चेंज इट टू, यहाँ पे इंच में आपको दिख रहा है, यू कैन चेंज इट टू mm, सेंटीमीटर, विच एवर यू वांट बाय द अपर टूल बार। ठीक है, तो सारे जो ऑप्शंस हैं उसको मैंने 0.078
इंच के लिए सेट कर दिया है, तो सारे जो मेरे वैल्यूज़ हैं वो अब छोटे, मतलब वॉट एवर फॉन्ट साइज यू वॉन्ट यू कैन सेट ओवर हियर। आप नहीं भी करते हो दैट इज़ बी कम्प्लीटली ओके, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन जिससे आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। राइट नाउ वी कैन से कि हमारा ये जो स्कीमेटिक है वो रेडी है। तो अब अगर हमें इसको पीसीबी में कन्वर्ट करना है, तो पीसीबी में कन्वर्जन के लिए हम सिंपली डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे एंड देयर व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू जस्ट import this into PCB। यू विल गेट ऑप्शन की इतने सारे हैं आपको सारे चेंजेस, तो हाँ हमें चेंजेस करने हैं। अप्लाई चेंजेस करके ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको पीसीबी का साइज़ डिफाइन करना है। सो रैंडमली मैंने एक साइज़ ले लिया है और ऑफकोर्स ये जो है वो हमारे रेड लाइन्स या कंपोनेंट के ऊपर से जा रहा है, इसलिए हमारा DRC रूल वायोलेशन हो रहा है, ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न अभी के लिए हमें उसको इग्नोर करना है बिकॉज हमें कंपोनेंट प्लेसमेंट अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये में कन्वर्ट करके जो हमारा पीसीबी का साइज़ है उसको मैं रैंडमली एक साइज़ का ले लिया। पहले कंपोनेंट प्लेस करेंगे और उसके बाद हम जाके इसका साइज जो है जितना छोटा हो सके उतना छोटा करेंगे। सो जो थ्रू होल कंपोनेंट है वो हम टॉप लेयर पे रखेंगे और जो एसएमडी कंपोनेंट्स हैं हम उसको प्लेस करेंगे बॉटम साइड में। तो ये जो हमें दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट द टॉप साइड ऑफ पीसीबी। तो हमें इस टॉप लेयर पे सिर्फ थ्रू होल कंपोनेंट लेने हैं और एल्स सारे जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो हमारे अदर साइड में जाएंगे। तो ये जो पीसीबी बनेगा ये सिंगल साइडेड पीसीबी बनेगा बिकॉज वेरी स्मॉल पीसीबी वे हैव और मोस्ट प्रोबेबली इसको सिंगल साइड में बनाना ईजी है। तो वी विल सी कि अगर समझो कहीं पे हमें लगता है कि हमारा कनेक्शन स्टक हो गया है, वी कांट इवन टेक अ ट्रैक, तो हमें उसको कैसे क्लियर आउट करना है, ठीक है। मैंने असेंबली कंपोनेंट को सिलेक्ट करके उसको बॉटम लेयर में चेंज कर लिया है। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जो मेरे थ्रू होल कंपोनेंट है वो जितने ज़्यादा मैं उसको रोटेट करके देखूंगी कि कौन से ट्रैक अच्छे से फिट हो रहे हैं। रेड लाइन बोलते हैं, जो ब्लू दिख रहा है आपको उसको रेड लाइन बोलते हैं। तो उससे मैं देखूंगी कि मतलब कम से कम क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने बहुत ही छोटा पीसीबी यहाँ पे बना लिया, मतलब कंपोनेंट बहुत पास में प्लेस करे। राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग कि बॉटम लेयर एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे जो वायर ट्रैक का ऑप्शन है मैं 1 बाय 1 सारे लाइंस कनेक्ट करूँगी। तो कुछ लाइंस बीच में गलत हो सकते हैं। अभी जो विड्थ है वो कम है तो राउट में जाके मैं वहाँ पे राउटिंग विड्थ मुझे मिल जाएगा। आई एम टेकिंग इट 0.5, ठीक है। तो कुछ कनेक्शंस अभी के लिए मैं कर लेती हूँ, बाद में शायद मुझे पता चले कि दिस आर रॉन्ग्स, तो मैं उस केस में उसको वापस से रीराउट करूँगी। तो वी विल सी कि हाउ वी आर डूइंग दिस कनेक्शंस, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग कि आई एम जस्ट मेकिंग इट क्वाइट फास्टर, ओके। आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द स्पीड। बट उसके पहले बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा कॉर्नर बना है वी डोंट नीड दैट। ये कॉर्नर से क्या हो जाता है, नॉइज़ जो है वो उसका इंटरफेरेंस बढ़ता है। सो व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर जस्ट चेंजिंग इट, जो शार्प कॉर्नर ना आए, ठीक है। तो नोड्स रहते हैं वहाँ पे, यू जस्ट नीड टू ड्रैग इट, तो उससे हमारा कॉर्नर जो है वो स्लाइटली बेंड हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट शार्प कॉर्नर्स, जो कि ज़रूरी होता है टू डिज़ाइन पीसीबी। आप स्लोली चेक करते जाओगे, राइट लाइन विल गाइड यू कि आपको ये वाला पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू जस्ट ट्रेस द लाइंस। तो यहाँ पे अभी मुझे जो सही लग रहा है आई एम मेकिंग दैट कनेक्शंस, ठीक है। बट शायद कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाए कि आई नीड टू चेंज माई कनेक्शंस। सो जैसे मुझे शायद लग रहा है कि आई नीड टू चेंज द कनेक्शंस, बट फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग कि आई एम जस्ट मेकिंग द कनेक्शंस। अभी ये हुआ है कि यू कैन सी मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन है, जो वीसीसी मुझे देना था वो और पॉट वाला, तो ये दोनों कनेक्शन मिसिंग है। तो उस केस में आई नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स। तो क्या एग्जैक्टली चेंज करना है, आई एम जस्ट मतलब जो मुझे सही लग रहा है आई एम मेकिंग दैट ओनली, ठीक है। तो जस्ट सी इट कि क्या हाउ यू कैन जस्ट गो थ्रू द पार्ट्स।
तो यहाँ पे अगर आप कुछ DRC रूल का वायलेशन करते हैं, यू विल गेट दैट सर्कल वार्निंग फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत अच्छी बात है. सो दिस विल प्रोटेक्ट योर सर्किट टू गेट शॉर्ट्स, अननेसेसरी शॉर्ट्स वी कैन से. तो अगर यहाँ पे आपको लगता है कि यू कैन नॉट गो थ्रू इट, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट चेंज द साइज ऑफ दैट ट्रैक. और यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑप्शन है अवेलेबल. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़, मैं यहाँ पे वो ट्रैक, अनदर ट्रैक जो है उसको मैं सेट कर लेती हूँ. और यस, मैं जस्ट ओके. सो अगेन आई मेक सम मिस्टेक. ओके, राइट लाइन बहुत इजीली गाइड करती है. जस्ट सी द थिंग, आई एम मेकिंग दिस फॉर फास्टर. यहाँ पे जो अगर आप नया ट्रैक बना लेते हो तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेम ट्रैक अगर है उन दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला, तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा. ठीक है. तो ये सॉफ्ट मतलब जब भी आप कोई पीसीबी डिज़ाइन करते हो तो बस चेक कर लीजिए कि वहाँ पे शार्प 90 डिग्री कॉर्नर्स वाले ट्रैक्स नहीं हो. सो दैट इज़ गुड प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है. तो अभी मुझे लग रहा है कि आई जस्ट मेक ऑल कनेक्शंस ट्रू. ठीक है. यस एग्जैक्टली. अब आपको ये दिखेगा कि जो मैंने पीसीबी का साइज़ लिया था वो बहुत बड़ा है और मेरे कनेक्शंस जो हैं वो बहुत छोटे पीसीबी में फिट हो गए. तो अभी मैं इस पीसीबी को रिक्वायर्ड बॉर्डर तक सेट कर लूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली डायमेंशन ऑफ माय पीसीबी इज़. तो यहाँ पे बहुत ही छोटा, जैसे कि 43.47 मतलब कुछ 4.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली बाय 22 मतलब 2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पीसीबी दिखेगा कैसा. ये है हमारा 2D व्यू. अब देखेंगे कि इसी पीसीबी को हम 3D व्यू में कैसे दे सकते हैं. सो थैंक्स टू दिस इजी EDA. तो यस, दिस इज़ व्हाट we have. through hole component एक साइड आ जाएंगे and on the other side we have tracks, we have assembly components and this is the PCB we will get. और साइज जो है इसका, what's the size? it's nothing but the 22 by 43 जो कि बहुत छोटा है. ठीक है. so this is how we can design PCB schematic in easy EDA. there are number of lot of softwares you can use, but this is one which is available free of cost and I think it is easy to use. If you want to know more about it, please do comment. Thank you.